Okay, so in the last class we discussed about sp3d hybridization, right? ना उसके अंदर 0 lone pair, 1 lone pair, 2 lone pair and 3 lone pairs के हमने cases देख लिए थे, right अक्षरा? And we also saw the respected examples for that as well. And in today's class we are going to see about the sp3d2 का hybridization and the geometry is related to that. And the last one will be sp3d3 का hybridization, right? Now, so see, I'm not going into the much details because all of this information from now onwards is related to the JEE advanced ka topic, okay? And in general, even if you see, those much difficult concepts are not being asked in the examinations like NEET and JEE mains. Okay, so we just have to look over like very briefly, ज़्यादा ऊपरा ऊपरी से देख लेंगे हम, in depth में नहीं जाएंगे, okay? और उसके accordingly तुमको अगर कोई doubt वगैरह होगा, you can definitely ask me about them. So we will starting with the sp3d2 का hybridization and sp3d3 का hybridization. See, there are different lone pairs possible for sp3d3 hybridization, but we are not gonna see every single of the lone pair and the geometry, okay? अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं sp3d2 से. सो sp3d2 के अंदर सब एग्जांपल्स मैं तुमको ले रहा हूँ. सबसे पहले SF6 का एक एग्जांपल लेंगे हम, ठीक है? एंड आफ्टर दैट वी विल बी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ CLF5 एंड द नेक्स्ट एग्जांपल वी विल बी सीइंग विल बी ऑफ ICL4 माइनस नेगेटिव साइन. ये नेगेटिव साइन क्या होता है हमने लास्ट क्लास में देखा था, राइट ना कृष्णा? व्हाट इज दिस नेगेटिव साइन? इट इंडिकेट्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, राइट? Yes, sir. Okay, so we are starting with the SF6 का hybridization. So tell me, which is the central atom in SF6, Krishna? In SF6, the central atom is sulfur. So atomic number of sulfur is 16. Can you tell me the electronic configuration of sulfur? 2, 8, 6. 2, 8 and 6. So how many valence electron, outermost electrons कितने हैं कृष्णा सल्फर में? 6. तो क्या करूँगा मैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करूँगा. दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, राइट ना? सो हल्का सा लेट मी जस्ट डिफरेंशिएट इट मोर. सो ICL4 माइनस यहाँ पे कहीं पे दे रहा हूँ, लेट इट बी. हाँ चलो बताओ कृष्णा, कितना अभी एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में हाउ मेनी फ्लोरीन्स आर अटैच्ड? एक एक फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है, राइट? सो दिस इज सेकंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, fourth fluorine, and this one is fifth fluorine, and over here will be the sixth fluorine, right? Do you see any lone pairs, Krishna, यहाँ पे? No lone pairs. So what will be the steric number? Steric number is nothing but the number of bond pairs plus lone pairs, right? Lone pair. So how many bond pairs are there? There are 1, 2, 3, 4, 5, 6 bond pairs are there, and there are 0 lone pairs. Thus the steric number will be 6. और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कृष्णा? 6 में से सबसे पहले एक तो हमने S को दे दिया. अब अपने पास बचे 5 में से मैं 3 दे रहा हूँ P को, sp3. अब बचे 2 और 2 के 2 मैं दे रहा हूँ D को. तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है यहाँ से, राइट ना अक्षरा? सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2. अब यहाँ पे लोन पेयर्स कितने अक्षरा? हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर? 0. 0. Now that is the main issue of concept. Similarly, if I have to see about the CLF5, which is the central atom in it, Krishna? Chlorine, right? No? Chlorine is the central atom, and after that the electronic configuration of chlorine stands 2, 8, 7. There are 7 outermost electrons in chlorine. First one, second one, third one, fourth one, fifth one, sixth one and seventh one. राइट ना अक्षरा? अब मेरे को बात बताओ, 7 में से क्या 5 फ्लोरीन के एटम्स है ना मेरे पास में कृष्णा? व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल अरेंज दिस 5 एटम्स एंड आई विल मेक द बॉन्ड्स विद देम. सो फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, दिस इज थर्ड फ्लोरीन, दिस इज फोर्थ फ्लोरीन, दिस वन इज फिफ्थ फ्लोरीन. 5 फ्लोरीन हो गया. क्या बचा कृष्णा मेरे पास में? 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या करूँगा इनका मैं? Lone pair. वेरी गुड. सो इनका बनेगा एक लोन पेयर. अब मेरे को एक बात बताओ, इफ़ आई हैव टू राइट अबाउट द स्टेरिक नंबर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, द स्टेरिक नंबर इज नथिंग बट क्या लिखूंगा मैं? टोटल बॉन्ड पेयर्स प्लस टोटल लोन पेयर्स. सो बॉन्ड पेयर्स कितने हैं कृष्णा यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5. 5 बॉन्ड पेयर्स आर देयर एंड लोन पेयर कितने अक्षर है यहाँ पे? 1 lone pair. So the steric number becomes 6, and if the steric number is 6, that means again the hybridization is sp3d2 का hybridization, and the number of lone pairs over here is equals to 1, right? अब difference क्या है इन दोनों के बीच में अक्षरा? There is no lone pair, and over here there is one single lone pair. And if I again have to talk about ICL4 minus का sign, मैं क्या करूँगा? I will identify the central atom. I have come to know that the central atom over here is iodine.
एंड आयोडीन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे समझो ना, आयोडीन का एटम अच्छा खासा नीचे जा रहा है बराबर ना पीरियोडिक टेबल के अंदर. सो वी डोंट नो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट में कैसे लिखेंगे. दस फॉर द हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट आई एम टेलिंग यू द शॉर्ट ट्रिक. कृष्णा हमने पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल देखा है. सो डू यू नो ये आयोडीन किसके पीरियड किसके ग्रुप में आता है. अब इतना तुमको पता होना चाहिए राइट ना, तुमको ग्रुप्स पता होना चाहिए. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो ये किसके ग्रुप में आ रहा है, फ्लोरीन के ग्रुप में आ रहा है. दस जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास में होंगे वही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास में भी होंगे. हाउ मेनी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन फ्लोरीन. सबसे पहले फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टैंड्स 2,7. thus there are 7 outermost electrons in fluorine. Therefore we will be writing there also will be 7 outermost electrons in the case of iodine as well. कितने हो गए मैंने 6 और 1 7. समझा कृष्णा तुमको. अब उसके बाद में देर आर 4 क्लोरीन के एटम. समझो ये आयोडीन हो गया कृष्णा. क्या सिर्फ आयोडीन है इधर. ये जो नेगेटिव साइन दिख रहा है ना तुमको, ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है अक्षरा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर. दस द नेगेटिव साइन हैपनिंग ऑन द आयोडीन का एटम. दस आई विल ऐड वन मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम माय साइड. अब इसके बाद में क्या करूंगा मैं, आई विल अरेंज ईच एंड एवरी सिंगल क्लोरीन का एटम. सेकेंड क्लोरीन, दिस इज थर्ड क्लोरीन एंड दिस इज फोर्थ क्लोरीन. अब मेरे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं कृष्णा. 4. क्या करूंगा मैं इनके साथ में, Lone pair. 2 लोन पेयर बनाऊंगा. सो दिस इज द फर्स्ट लोन पेयर एंड ओवर हियर विल बी द सेकेंड लोन पेयर. अंडरस्टूड. Yes. राइट. अब इसका स्टेरिक नंबर लिखना है मेरे को. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्टेरिक नंबर कृष्णा. स्टेरिक नंबर इज नथिंग बट टोटल बॉन्ड पेयर्स प्लस टोटल लोन पेयर्स. हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर. दिस इज द फर्स्ट बॉन्ड पेयर, सेकंड बॉन्ड पेयर, थर्ड बॉन्ड पेयर एंड दिस इज फोर्थ बॉन्ड पेयर. सो देयर आर 4 बॉन्ड पेयर्स एंड देयर आर 2 लोन पेयर्स. अगेन द स्टेरिक नंबर कम्स आउट टू बी 6 एंड देयरफॉर द हाइब्रिडाइजेशन विल अगेन टर्न आउट टू बी sp3d2. अगर यहाँ पे मेरे पास में 2 लोन पेयर्स हैं, आई विल बी राइटिंग द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ओवर हियर इज नथिंग बट 2. अंडरस्टूड. सो अब मैंने सक्सेसफुली तीनों मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकाल चुका हूँ. एंड नाउ आई हैव टू सी अबाउट द ज्योमेट्री. दैट्स इट. आई एम ओनली कंसर्न अबाउट द ज्योमेट्री इन दिस केस नाउ. सो अक्षरा वापस से देखो, ज्योमेट्री जब भी डिसाइड करेंगे, आई एम टेलिंग यू इन तीनों लेक्चर्स में अपने पास में जो कॉमन रूल रहा है, दैट रूल जस्ट स्टेट्स दैट जब भी तुम ज्योमेट्री लिखने की कोशिश करोगे, तुमको सिर्फ एक काम करना है. यू हैव टू मेक द बॉन्ड्स एंड यू हैव टू सिचुएट द बॉन्ड्स एट द मैक्सिमम डिस्टेंस सो दैट इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन मिनिमम रहे. अंडरस्टैंडिंग ना अक्षरा. यही एक चीज़ होता है राइट. सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू राइट द हाइब्रिडाइजेशन, it is geometry, sorry, whenever you are trying to indicate or dictate the geometry of a given molecule, it is your sole responsibility कि तुम सबसे पहले बॉन्ड्स बनाओगे और या उन बॉन्ड्स को या उन लोन पेयर्स को तुम मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखोगे. दैट्स इट. समझा तुमको ना. मेरे पास में ये जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं सल्फर के, नाउ इट डज नॉट मैटर कि तुम मॉलिक्यूल को प्लेनर रख रहे हो या फिर नॉन प्लेनर रख रहे हो. अंडरस्टैंडिंग ना. Yes. राइट. तुमको अगर 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाना है, इट्स वेलकम, तुम लोग बना सकते हो 3D स्ट्रक्चर. तुमको 2D में रखना है तुम 2D में रख सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू. हाँ. तो अब मेरे पास में SF6 है, 1 सल्फर है, 6 फ्लोरीन के एटम्स है मेरे पास में. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप द सल्फर का एटम इन द सेंटर. सो दिस इज द सल्फर का एटम ओवर हियर. अब मेरे पास में 6 फ्लोरीन के एटम्स हैं. आई हैव टू अरेंज इन सच अ वे दैट हर एक फ्लोरीन का एटम मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे. व्हाट डू यू थिंक कृष्णा, उसको मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ. टेल मी एनी रैंडम वे. ठीक है, कोई भी रैंडम वे बताओ मेरे को अक्षरा, सो दैट आई कैन अरेंज 6 फ्लोरीन के एटम्स अराउंड सल्फर. कैसे अरेंज करूँ मैं सोमिया. रिपीट इट कृष्णा. क्या बोल रहे हो. In circle. In circle. So let's say this is my first fluorine, this is my second fluorine, this is my third fluorine, this is my, do one thing, okay, this is my first fluorine, this is my second fluorine, this is my third fluorine, this is my fourth fluorine, this is my fifth fluorine and this is my sixth fluorine, somewhere around here. बराबर ना अक्षरा. हाँ, तो ये सर्कल बन रहा है ना अप्रॉक्सीमेटली. अब ये प्लेन में है राइट ना कृष्णा. सब कुछ एक ही पेपर के ऊपर आ जाएगा राइट. एक ही प्लेन में आएगा. ऐसा रखूंगा तो समझो ज़रा, ये दिस इज फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड, फिफ्थ बॉन्ड, सिक्स्थ बॉन्ड. अगर मान के चलो इक्वल डिस्टेंस पे रख रहे हो तो एवरी सिंगल एंगल शुड बी 60 डिग्रीज. देयरफॉर द टोटल एंगल विल बिकम 360 डिग्री राइट ना अक्षरा. ये एक्सपेक्टेड है हमारे से. बट ये ठीक है, ये एक बेस्ट बोल सकता हूँ मैं कि एक प्लेन में रखने के लिए दिस इज़ द बेस्ट अरेंजमेंट आई कैन सी. बट कृष्णा मेरे को प्लेन का कोई ज़रूरत है ही नहीं. लाइक मैं 3 डायमेंशन में भी मॉलिक्यूल को लेके जा सकता हूँ. सो व्हाट डू यू थिंक अक्षरा, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा. मतलब ये है कि मेरे को और बॉन्ड्स को दूर लेके जाना है. क्या मैं इन 6 बॉन्ड्स को एक दूसरे से और दूर लेके जा सकता हूँ. सोमिया, कैन आई टेक दिस 6 बॉन्ड्स अवे फ्रॉम ईच अदर in this structure. I don't care if the structure goes in 3rd dimension or not.
यस कैसे जाएगा Yes, कृष्णा? sir. हाउ इज इट पॉसिबल? सर्कल बड़ा करो। सर्कल बड़ा करेंगे तब भी तो वही रहेगा ना कृष्णा, एंगल तो सेम रहेगा ना 60 डिग्रीज का। एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे। अमेजिंग, वेरी गुड। सो अब मैं क्या करूँगा कृष्णा, ये जो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के एंगल्स बन रहे थे ना, अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनो। दिस इज़ माई फर्स्ट फ्लोरीन, दिस ओवर हेयर। अब सबसे पहले मैं एक स्क्वायर प्लेन का अरेंजमेंट करता हूँ, ठीक है। मान लो ये अलादीन का चादर है, ठीक है, या इन जनरल एक पेपर है, राइट ना अक्षरा? पेपर देख पा रहे हो? दिस इज़ द 3 डायमेंशन पेपर, राइट ना? अच्छा, इसको मैं और बेटर वे में लिखने की कोशिश करता हूँ, समझो। अक्षरा, आई डोंट हैव एग्जैक्टली, मैं उसमें को पता नहीं यार एग्जैक्टली इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, बट यू हैव टू विजुलाइज इट। हाँ, याद रखो, कोई भी टीचर तुमको तभी तक बता सकता है जब तक तुम खुद से विजुलाइज करने की टेंडेंसी रख रहे हो। आफ्टर दैट इट्स ऑल अप टू योर विजुलाइजेशन। ये पेपर हो गया मेरे पास में, दीवार होगी, मान के चलो एक वॉल है, बराबर ना अक्षरा? इस वॉल के एक साइड में खड़ा है पर्सन ए और इस वॉल के दूसरे साइड में खड़ा है पर्सन बी, राइट अक्षरा? कैन यू विजुअलाइज इट? सुम्या, संस्कृति, कृष्णा। अब इस वॉल के ऊपर मैं क्या करूँगा, इस वॉल के ऊपर एक फ्लोरीन का आइटम एक कॉर्नर के पास रखूँगा, दूसरे फ्लोरीन का आइटम दूसरे कॉर्नर के पास रखूँगा, तीसरे फ्लोरीन का आइटम तीसरे कॉर्नर पे रखूँगा और चौथे फ्लोरीन का आइटम चौथे कॉर्नर के पास रखूँगा। अब जो सेंट्रल आइटम सल्फर है, आई विल ट्राई टू कीप दिस सेंट्रल आइटम इन द सेंटर, इसी वॉल के ऊपर ही रख रहा हूँ मैं। कितने फ्लोरीन्स आ गए अक्षरा मेरे पास में? 4। कितने फ्लोरीन्स बचे हैं? 2 फ्लोरीन्स। अब मैं क्या करूँगा, एक फ्लोरीन ए के पास दूंगा और एक फ्लोरीन मैं बी के पास रखूँगा, राइट? अब मेरे को एक बात बताओ कृष्णा, जो एंगल बन रहा है एस एफ के बीच में, पहले कितना था? 60 डिग्रीज, अब कितना हो गया बढ़ के? 120। 90 डिग्रीज। 4 है ना, 90 90 90, 120 कैसे होएगा? स्क्वायर है ना ये, डायगोनल्स के बीच में एंगल कितना होता है स्क्वायर के डायगोनल्स के बीच में? 90 डिग्रीज। और जो 2 फ्लोरीन्स बाकी है ना, ये फ्लोरीन ऊपर जाएगा, ऊपर के साइड में, प्लेन के ऊपर है ये, या एक साइड में प्लेन के, और जो दूसरा फ्लोरीन है ये प्लेन के नीचे के साइड में है, ऐसे। कैन यू विजुअलाइज इट नाउ अक्षरा? अब इसको जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा मैं, एक स्क्वायर बनाऊंगा, दिस इज माय फर्स्ट फ्लोरीन, दिस इज माय सेकंड फ्लोरीन, दिस इज माय थर्ड फ्लोरीन। ये स्क्वायर है, दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल, याद रखो। मैं थोड़ा सा तुमको टिल्ट करके दिखाया हूँ, दैट्स वाई ये रेक्टेंगल अपीयर हो रहा है, बट एक्चुअल में वो स्क्वायर ही है। सो दिस इज माय फोर्थ फ्लोरीन। अंडरस्टैंडिंग अक्षरा? ये स्क्वायर बन गया ना इनके बीच में, यस राइट? बीच में सल्फर रहेगा। अब इस स्क्वायर के ऊपर से समझो, ऊपर मतलब कैसे, ये ज़मीन है पूरी की पूरी, मेरा अर्थ है, फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर लोग ठहरे हैं दही हंडी फोड़ने के लिए, ऊपर जाएगा ना ये लाइन, टावर है, टावर रखा हुआ है ऐसा ज़मीन के ऊपर, राइट? सो दिस इज़ द टावर, और टावर के अलॉन्ग में ही एक फ्लोरीन मेरा ऊपर में आएगा, और इस ज़मीन के अंदर इसके नीचे के साइड में प्लेन के नीचे एक फ्लोरीन आएगा, लाइक दिस। अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज़ माई फर्स्ट फ्लोरीन एंड दिस इज़ माई सेकेंड फ्लोरीन, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये चारों के चारों जो फ्लोरीन है ये प्लेन के अंदर लाइक करते हैं, राइट अक्षरा? अंडरस्टैंडिंग? दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ SF6 वर्क्स। अब अगर मेरे को ज्योमेट्री देखना रहा अक्षरा, तो मैं क्या करूँगा, ये फ्लोरीन को ज्वाइन करा लूँगा इसके साथ में, राइट ना, ऐसे। ये फ्लोरीन को मैं इसके साथ में ज्वाइन कराऊंगा और ये फ्लोरीन को मैं यहाँ पे ज्वाइन कराऊंगा। कृष्णा, कैसा शेप कैसा दिख रहा है इसका, ज्योमेट्री कैसे दिख रही है? ट्राइगोनल ही ना, स्क्वायर है ना, ये पिरामिड के जैसा दिख रहा है ना, बट ये स्क्वायर, इसका बेस स्क्वायर है, लेकिन ये पिरामिड तो बन रहा है, राइट ना? राइट सुमिया, कैन यू विजुअलाइज? एक पिरामिड ऊपर बन रहा है तो एक पिरामिड क्या नीचे भी बनेगा ऐसे? यस। तो ये 2 पिरामिड्स हो गए मेरे पास में, राइट ना? लेकिन इन पिरामिड्स का बेस स्क्वायर है, इसीलिए मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले तो ये स्क्वायर है, और पिरामिड्स कितने बन रहे हैं अक्षरा? 2। तो 2 को क्या बोलेंगे, बाय पिरामिडल ना, स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप आएगा इसका। अंडरस्टैंडिंग? आई डोंट नो द स्पेलिंग, बाय पिरामिडल। तो स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप आएगा। किसका शेप आएगा? स्क्वायर पिरामिडल, जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 एंड द लोन पेयर इज 0। आंख बंद करके इसका शेप क्या लिखोगे तुम? अरे जस्ट अ मिनट, सॉरी, स्क्वायर बाय पिरामिडल मत बोलो, इसको ऑक्टाहेड्रल बोल लेना, ठीक है? डू वन थिंग, ये शेप जो होता है ना ऑक्टाहेड्रल होता है, समझ रहे हो? स्क्वायर बाय पिरामिडल बोल सकते हो, बट इन जनरल स्क्वायर बाय पिरामिडल का कंसेप्ट देखने नहीं मिलता, तो इसको ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हैं, ठीक है? इसी शेप को। अंडरस्टैंडिंग? हाँ ना, बोलो। हाँ, स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप करेक्ट है कृष्णा, इसका ये रॉन्ग नहीं है, बट स्क्वायर बाय पिरामिडल इट्स नॉट अ फेमस नेम नोन। हाँ, सो दस यू हैव टू से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल तुम सर्च कर लेना गूगल पे, यही शेप मिलेगा तुमको, समझ लो? डायमंड का शेप समथिंग लुक्स लाइक ऑक्टाहेड्रल का शेप होता है, ठीक है? अरे कुछ दिखता है एक्चुअल में, ठीक है? ये हो गया मेरा एक लोन पे अक्षर। अंडरस्टैंडिंग? इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल बोल ही लो यार, चलो छोड़ दो तुम, स्क्वायर बाय पिरामिडल।
समझा? डज नॉट मैटर, तुम किसी भी नाम से बुलाओ, बट यू हैव टू नो द ज्योमेट्री। इसके पीछे का बस तुमको फील आना चाहिए कि बना कैसे है, दिखेगा कैसे, समझ रहे हो? हाँ, अब व्हेन इट कम्स टू वन लोन पेयर, ClF5 का मॉलिक्यूल है मेरे पास में, मैं क्या करूँ अक्षरा? ये देखो, ये जो सल्फर के साथ में 6 फ्लोरीन के एटम्स अटैच हो रहे थे ना, सेम ज्योमेट्री रहेगा, मतलब बीच में कोई ना कोई सेंट्रल एटम रहेगा और 4 जो एटम्स रहेंगे वो स्क्वायर के कॉर्नर्स के अराउंड में ही रहेंगे। बट यहाँ पे जो 5वां एटम ऊपर जा रहा था, अब ये 5वां एटम नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा अक्षरा? लोन पेयर। लोन पेयर। सो यहाँ लोन पेयर आ जाएगा। अब ये लोन पेयर की वजह से देखो, अब इस लोन पेयर का इन बॉन्ड्स के ऊपर कोई इफेक्ट गिरेगा ही नहीं। वाई? बिकॉज ये जो एटम्स हैं चारों के चारों, ये अलग प्लेन में हैं और लोन पेयर ऊपर की अलग प्लेन में है। अंडरस्टैंडिंग? यस। अंडरस्टैंडिंग ना अक्षरा? तो समझो, अभी एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पे? एग्जाम्पल ले रहा हूँ ClF5 का। सो दिस इज द सेंट्रल एटम क्लोरीन, this is the first fluorine का atom, this is the second fluorine का atom, this one over here is the third fluorine का atom, and here is my fourth fluorine का atom. These 4 fluorines are lying across a square का साइड, बराबर ना कृष्णा? अब इसके नीचे के साइड में या ऊपर के साइड में, इट्स ऑल अप टू यू, तुमको किधर बॉन्ड बनाना है। मैं बॉन्ड नीचे बना रहा हूँ, एक फ्लोरीन 5वां नीचे आएगा और ऊपर क्या बचेगा अक्षरा? एक लोन पेयर, राइट ना कृष्णा? अगर तुमको नीचे नहीं लेना है, तुमको ऊपर लेना है, तो तुम ऊपर के साइड में एक फ्लोरीन का एटम बनाओ और नीचे से लोन पेयर लो। इट्स ऑल अप टू यू, right now. Now tell me, Yes. whenever we are deciding the geometry, Soumya, does the lone pair play any role? नो। Note sir. No sir. So that's why आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस लोन पेयर को हटा देंगे और ज्योमेट्री विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। अक्षरा, व्हाट डू यू थिंक इज द ज्योमेट्री? यहाँ से मैं एक फ्लोरीन को ज्वाइन कर रहा हूँ सारे के साथ में। अब बताओ ज्योमेट्री कैसे बन रहा है कृष्णा? अगर लोन पेयर को गायब करूँगा, पिरामिडल। बेस क्या है कृष्णा इसका? स्क्वायर है या ट्रायंगल है? स्क्वायर। स्क्वायर। तो ज्योमेट्री क्या आएगा अक्षरा इसका? Square pyramid. वेरी गुड, अमेजिंग, परफेक्ट। हाँ, स्क्वायर पिरामिडल इज द ज्योमेट्री। समझा कृष्णा तुमको? यस। सो द ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बिकम स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिड तो है कृष्णा, बट पिरामिड्स के लिए भी अलग अलग बेसिस हो सकते हैं ना। स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, एंड अप टू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। हाँ, पिरामिड दिखता है अपने को ऊपर से जा रहा है भाई, कि थर्ड डायमेंशन में एक्सटेंडेड है, नैरो होता जा रहा है, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं सारी की सारी चीज़ें, बट उसका बेस भी तो इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग ना अक्षरा? एंड इन sp3d2 द लास्ट हाइब्रिडाइजेशन रिमेन्स। अब यहाँ पे क्या करूँगा कृष्णा मैं? देखो, मेरे पास में इनिशियली कितने हैंड्स थे अक्षरा? 6 हाथ थे, बराबर ना? 6 में से यहाँ पे एक हाथ गया, इस हाथ के जगह पे लोन पेयर आ गया, ये बॉन्ड के जगह पे लोन पेयर आया। अब यहाँ पे एक बॉन्ड और कम हो रहा है ना अक्षरा? देखो यहाँ पे टोटल बॉन्ड्स कितने हैं सोम्या? 1 2 3 4 5। इधर टोटल बॉन्ड्स कितने हैं सोम्या? 4। इधर लोन पेयर्स कितने थे? 1। और यहाँ पे आके लोन पेयर्स कितने हो गए कृष्णा? So can I say that in moving in this hybridization and lone pairs, can I say that एक बॉन्ड कम हो रहा है और एक लोन पेयर बढ़ रहा है? यस। राइट ना Yes, अक्षर? sir. तो यहाँ से क्या होगा, इस वाले मॉलिक्यूल से एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर और जाएगा और एक लोन पेयर आएगा, तो ये वाला बॉन्ड पेयर जाएगा, इधर पे एक लोन पेयर बनेगा, राइट ना? दैट्स द डिफरेंस। हाँ, समझने की कोशिश करो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सेंट्रल एटम तो रहेगा अपने पास में, सेंट्रल एटम के साथ में 4 एटम्स बॉन्डेड रहेंगे, 1 2 3 4। अब जो लोन पेयर्स रहेंगे अक्षरा, वो किधर आएंगे? ऊपर एक लोन पेयर और नीचे एक लोन पेयर, राइट ना? यस। Yes sir. ग्रेट। तो अब वही मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। याद रखो, सेंट्रल एटम इज माय क्लोरीन, आयोडीन का एटम, एंड यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट क्लोरीन, दिस इज माय सेकेंड क्लोरीन, दिस इज माय थर्ड क्लोरीन, एंड दिस इज माय फोर्थ क्लोरीन। अंडरस्टैंडिंग? अभी क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है आयोडीन के ऊपर, I-, तो नेगेटिव चार्ज ही मेरे को लिखना पड़ेगा। इधर लिखो या ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर लिखो, डज नॉट मैटर, ठीक है, बट द नेगेटिव चार्ज यू शुड राइट। तो यहाँ पे बना एक स्क्वायर का शेप मेरा, बराबर ना कृष्णा? ये दिखने में रेक्टेंगल दिख रहा है, बट ये स्क्वायर है एक्चुअली। हाँ, एक लोन पेयर आएगा इसके ऊपर साइड से, और सोम्या एक लोन पेयर आएगा इसके नीचे के साइड से। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं? वेन एवर आई टॉक अबाउट द ज्योमेट्री, द लोन पेयर डज नॉट प्ले एनी रोल ना, उसका बस इफेक्ट कंसिडर होता है, लेकिन उसका शेप, उसका अपीयरेंस कंसिडर नहीं होता। तो बताओ कृष्णा, कौन सा शेप दिख रहा है? सोम्या, संस्कृति, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? स्क्वायर? यस। स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर शेप है इसका? Rectangle. नहीं, रेक्टेंगल ही, स्क्वायर ही अक्षरा, रेक्टेंगल ही है, स्क्वायर ही है, बट ये स्क्वायर एक प्लेन के अंदर लाइक कर रहा है ना कृष्णा? प्लेनर है ना मॉलिक्यूल ये? यस। हाँ, तो स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे इसको। हाँ, हमने ट्राइंगुलर प्लेनर देखा था ना? यस। तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अंडरस्टैंडिंग अक्षरा? प्लेन में है ना, चारों के चारों, पांचों के पांचों जो एटम्स हैं, आयोडीन, क्लोरीन, 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 एक ही प्लेन में है ना वो सब?
right? Yes. So the square planar is the geometry in this scenario. So this is the square planar का geometry, right? So यहाँ पे अपना sp3d2 hybridization खत्म होता है, and in the last class we are going to see about the sp3d3 का hybridization. तो इसका एक एग्जांपल मैं सी, ऑल दो यहाँ पे बहुत है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल लेकर आता है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल लेकर आता है, एंड मल्टीपल थिंग्स आर देयर. आई डोंट हैव टू डिस्कस अबाउट एवरी सिंगल थिंग बिकॉज वो तुम्हारे लिए है भी नहीं, और इस लेवल पे वो सारी चीज़ें डिस्कस करने का कोई सेंस भी नहीं बनता, राइट ना कृष्णा? तो अपन ऊपरा ऊपरी से चीज़ों को देखेंगे, इन डेप्थ में नहीं जाएंगे फिलहाल में. हाँ, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई का एग्जाम, एट दैट टाइम आई विल बी टेलिंग यू एवरी सिंगल थिंग इन डिटेल. समझ रहे हो? और टू बी फ्रैंक, अब हमने अपने जितना डिस्कशन किया है ना, इवन द फॉरवर्ड आगे के टॉपिक जो हम देखने वाले हैं उसके अंदर हम बैक बॉन्डिंग नहीं लेंगे, उसके अंदर हम बनाना बॉन्ड्स नहीं लेंगे, उसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग नहीं लेंगे. मल्टीपल कंसेप्ट्स आर देयर जो मैं फाउंडेशन के लिए ओमिट कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ठीक है? बट व्हेन इट कम्स टू नीट एंड जेई का सिलेबस, वहाँ पे हम इन डेप्थ जाके चीज़ों को देखेंगे. अंडरस्टैंडिंग? सो दैट तुमको बस एक आइडिया आ जाए, रफ एस्टिमेशन आ जाए कि व्हाट द थिंग्स डू डिमांड इन केस ऑफ जेई एंड नीट के एग्जाम्स. समझ रहे हो? सो sp3d3 के केस में आई एम टेकिंग द ओनली सिंगल मॉलिक्यूल IF7. समझा? अब IF7 के अंदर सिनेरियो क्या होता है देखते हैं. विच इज़ द सेंट्रल एटम कृष्णा? आयोडीन का I इज़ द सेंट्रल एटम. इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे सोमिया? कैसे चेक करोगे? सबसे पहले चेक करोगे ग्रुप. हाँ, तो ग्रुप फ्लोरीन के ग्रुप में आ रहा है, देयरफॉर इट विल हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स outermost shell. ठीक है? So this is first electron, second electron, third electron, fourth, fifth, sixth and seventh. अब साथ के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ में 7 फ्लोरीन्स अटैच्ड है, राइट ना कृष्णा? फर्स्ट फ्लोरीन, सेकेंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, Yes. fourth fluorine, and this is fifth fluorine, this is sixth fluorine, and this is seventh fluorine. Now tell me Akshara, what is the steric number? Can I say that the steric number is nothing but total bond pairs plus total lone pairs? So total bond pairs कितने अक्षरा यहाँ पे? 7. And how many lone pairs are there Krishna? 0 lone pairs. 0. Thus the steric number becomes 7. So if the steric number is 7, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा? मैं अभी तुमको विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ, समझो. हाँ, अब मेरे को 7 फ्लोरीन के एटम्स अरेंज करने हैं अराउंड आयोडीन. तो कृष्णा बेस्ट वे क्या हो सकता है तुम्हारे अकॉर्डिंग? बताओ मेरे को कि मैं कैसे अरेंज करूं. अक्षरा, 7 फ्लोरीन के एटम्स आयोडीन के अराउंड में मैं कैसे अरेंज करूं? अराउंड द सर्कल, अराउंड द सर्कल, या कैसे अरेंज करूं? चलो मैं अराउंड द सर्कल अरेंज करता हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोरीन, दिस इज़ द सेकेंड फ्लोरीन, दिस इज़ द थर्ड फ्लोरीन, दिस इज़ द फोर्थ फ्लोरीन, दिस इज़ द फिफ्थ फ्लोरीन, दिस इज़ द सिक्स्थ फ्लोरीन, दिस इज़ द सेवेंथ फ्लोरीन. बट माई क्वेश्चन इज दैट इज दिस स्ट्रक्चर एक्यूरेट कृष्णा? स्टेबल रहेगा? मतलब अच्छा खासा रिपल्शन मिलेगा ना? 7 बॉन्ड्स हैं उसके. अंडरस्टैंडिंग? सो मेरे को क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर. कैसे मॉडिफाई करूँगा समझने की कोशिश करो. तुम सबको पेंटागन पता है कैसे होता है अक्षरा? सो मैं, डू यू नो हाउ द पेंटागन लुक्स लाइक? कैसे दिखेगा पेंटागन? How does it look like? ऐसे दिखेगा ना पेंटागन? Yes, sir. Should be little ऐसे. करेक्ट अक्षरा? ऐसे दिखेगा पेंटागन? Yes, sir. 5 साइड्स 5 एंगल्स के साथ में, राइट ना? तो अब मैं क्या करूँगा, इस पेंटागन के अलॉन्ग में 5 आयोडीन के एटम, फ्लोरीन के एटम्स रख रहा हूँ, समझो. ठीक है? तो ये पेंटागन मान के चलो, ये दीवार है, ये प्लेन है, पेंटागन का प्लेन है ऐसे. अब इस प्लेन के ये साइड में एक बंदा ठहरा है तुम्हारे साइड में सामने, और पीछे एक बंदा ठहरा है इसके, और सामने एक बंदा ठहरा है यहाँ पे. कैन यू विजुअलाइज इट? ये पीछे और ये सामने. Yes. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, राइट ना अक्षरा? अब मैं क्या करूँगा, इस पेंटागन के 5 कॉर्नर्स के अलॉन्ग में 5 फ्लोरीन के एटम रखूँगा. फर्स्ट फ्लोरीन, सेकेंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ फ्लोरीन एंड फिफ्थ फ्लोरीन. और बीच में तो एटम रहेगा, सेंट्रल एटम आयोडीन का. अब जो बचे हुए 2 फ्लोरीन्स हैं ना, मैं उनको एक ये साइड में रख रहा हूँ, उसके अंदर के साइड में प्लेन के एक साइड में, और दूसरा जो फ्लोरीन रख रहा हूँ प्लेन के दूसरे साइड में. इट्स अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. कैन यू विजुअलाइज इट नाउ? Yes, sir. राइट. तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा ना, सो आयोडीन इज द सेंट्रल एटम, एंड देर इज दिस फर्स्ट फ्लोरीन का एटम, देर इज दिस सेकेंड फ्लोरीन का एटम, देर इज दिस थर्ड फ्लोरीन का एटम, इट्स द फोर्थ फ्लोरीन एंड इज द फिफ्थ फ्लोरीन. ठीक है? ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं एक पेंटागन का, राइट ना अक्षरा? कृष्णा, इज इट पेंटागन ना? Yes.
बस मैं इसको और थोड़ा आगे लेता हूँ सो दैट एक परफेक्ट पेंटागन बन के सामने आ जाए. दिस एंड दिस हो गया ना अक्षरा पेंटागन का शेप. Yes, sir. राइट. दिस 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 एंड दिस. ये पेंटागन बन गया. अभी जो छठा फ्लोरीन आएगा किधर जाएगा अक्षरा? प्लेन के ऊपर ना, यहाँ पे ये ऊपर का साइड है प्लेन के, ये ऊपर से आ रहा है. और जो सातवां फ्लोरीन रहेगा किधर रहेगा अक्षरा? प्लेन के नीचे ना. Yes. सो दिस इज द सिक्स्थ फ्लोरीन एंड दिस वन इज द सेवेंथ फ्लोरीन. कृष्णा इसका ज्योमेट्री कैसे दिख रहा है तुमको? इसका बेस क्या है अक्षरा? यहाँ पे भी पिरामिड बन रहा है ना कृष्णा, ये ऊपर जो आ रहा है देखो. Yes. कैन यू सी इट अक्षरा? पिरामिड बन रहा है ना, Yes, sir. ऊपर भी और नीचे बन रहा है. राइट सोम्या? Yes, sir. सो ऊपर एक पिरामिड बन रहा है, नीचे एक पिरामिड बन रहा है. सो इसका ज्योमेट्री क्या होगा कृष्णा? दो पिरामिड्स बन रहे हैं तो बाई पिरामिडल तो फिक्स हो गया, लेकिन बेस कौन सा है इसका? Pentagonal. अमेजिंग. सो द ज्योमेट्री कम्स आउट टू बी पेंटागोनल बाई पिरामिडल. समझा अक्षरा? Yes, sir. Pentagonal by pyramidal. Understood Krishna? So this was all about the valence share electron pair repulsion theory, wherein we have to know about the molecules and we can find their geometries based on the hybridization and number of lone pairs. Understanding? अब ये तुम्हारे ऊपर रहा कि if you have any atom or molecule, it's up to you कि तुम लोग उसका ज्योमेट्री कैसे डिसाइड कर रहे हो. तुम उन लोगों की टेबल बना लो इफ़ पॉसिबल, टेबल से याद रखो, या इन जनरल अगर तुमको डायरेक्टली कोई मॉलिक्यूल दे दे जैसे NH3 का मॉलिक्यूल, यू कैन डू द ऑल कैलकुलेशन बाय योर ओन सेल्फ. ठीक है? तो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 ये पूरे हाइब्रिडाइजेशन हमने अब तक के कवर कर लिए हैं. बराबर ना अक्षरा? और इन हाइब्रिडाइजेशंस के अंदर में आने वाले लोन पेयर्स, बेस्ड ऑन द लोन पेयर्स उनका ज्योमेट्री कैसे होगा. सी अभी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बॉन्ड एंगल्स वगैरह भी होता है. आई एम नॉट गोइंग इनटू द मच डिटेल्स फॉर नाउ, बट अभी के लिए तुमको इतना तो पता चल गया ना. अभी मैं अगर रैंडमली कोई मॉलिक्यूल दे दूँ तुमको तो फिर निकाल सकते हो उसका ज्योमेट्री. राइट ना? हाँ कृष्णा, एज लॉन्ग एज द वीक पॉइंट इज कंसर्न कृष्णा, तुमको देखो सबसे पहले एटम्स का नाम के अकॉर्डिंग, जैसे मैं बोलूँ Cl स्टैंड्स फॉर क्लोरीन. क्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, ये तुमको पता होना चाहिए इसके लिए. आ रहा है? अगर ये पता नहीं है सो यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन दिस वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का थ्योरी. अंडरस्टैंडिंग ना? अब उसके लिए डू वन थिंग, अभी तुमको जैसे करना है यू कैन जस्ट स्ट्रेंथन योर कंसेप्ट, बट इसके अलावा देर इज़ नो अदर ऑप्शन टू फाइंड इट. समझ रहे हो? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पता होने ही चाहिए. दैट्स द ओनली रीज़न तुम जिससे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो. अंडरस्टैंडिंग अक्षरा? अब मेरे को बताओ SO4-2 का मैंने एग्जाम्पल लिया था, इसके अंदर व्हाट विल बी द ज्योमेट्री इसका. SO4-2 का मतलब समझते हो ना, ये H2SO4 का एग्जाम्पल है. H2SO4 का जो डिकम्पोज कैसे होगा, H2SO4 डिकम्पोज होगा, 2 H+ निकलेंगे यहाँ से और SO4-2 जाएगा. अंडरस्टैंडिंग ना? सो SO4-2 इज़ नथिंग बट H2SO4 का ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ मैं तुमसे. चलो बताओ SO4-2 क्या आएगा अक्षरा? ये मैंने होमवर्क दिया था ना लास्ट क्लास में करने के लिए तुमको. विच इज़ द सेंट्रल एटम सोमिया? Sulfur. फाइंड द ज्योमेट्री. ट्राई कर सकते हो, थोड़ा टाइम चाहिए या मैं स्टार्ट करूँ? Will try, sir. ओके. टेट्राहेड्रल. Yes, sir. हु इज दिस सोमिया? Yes, sir. अक्षरा? ओला. ओके ठीक है. टेट्राहेड्रल इज द करेक्ट आंसर. हाँ कृष्णा, विच इज़ द सेंट्रल एटम? सल्फर इज द सेंट्रल एटम. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2, 8, 6. आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब इसके बाद में बराबर ना, और 2 एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. -2 चार्ज है ना इसके ऊपर. तो दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, Yes, sir. सेकेंड इलेक्ट्रॉन. अभी 4 ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन ऑलवेज मेक्स द डबल बॉन्ड. सो दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीजन, दिस इज द सेकेंड ऑक्सीजन, दिस इज द थर्ड ऑक्सीजन एंड दिस इज द फोर्थ ऑक्सीजन. तो इसका स्टेरिक नंबर क्या आएगा कृष्णा? स्टेरिक नंबर इज नथिंग बट बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स. कितने बॉन्ड पेयर्स हैं यहाँ पे? दिस इज द फर्स्ट बॉन्ड पेयर, दिस इज द सेकेंड बॉन्ड पेयर, दिस इज द थर्ड बॉन्ड एंड दिस इज द फोर्थ बॉन्ड. तो एक्चुअल में 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, लोन पेयर 0 है, तो 4 बॉन्ड पेयर 4 आएगा इसका स्टेरिक नंबर. हाइब्रिडाइजेशन इज sp3
लोन पेयर यहाँ पे आ रहे हैं 0 मेरे पास में, बराबर ना। अब तुम इसका टेबल बना सकते हो, तो टेबल बना के याद रखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर आ 0, डायरेक्ट उसका ज्योमेट्री आएगा टेट्राहेड्रल। या फिर तुमको वैसे नहीं समझ में आ रहा तो इन जनरल तुम एक उसका शेप ड्रॉ कर लो, दिस इज़ द सल्फर। अब मेरे को 4 ऑक्सीजन लगाने हैं, तो 4 ऑक्सीजन हो सकता है मैं प्लेन के अंदर लगाऊँ, बट अगेन प्लेन के अंदर चारों के चारों ऑक्सीजन को लूँगा तो बॉन्ड एंगल्स कम रहेंगे, रिपल्शन होगा, दूर भागने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ द रीज़न मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 ऑक्सीजन का एक बेस बना रहा हूँ, ट्रायंगुलर बेस। फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन, ये बन गया ट्रायंगुलर बेस का प्लेन, बराबर ना कृष्णा। अब इसके ऊपर मैं एक सल्फर का एटम ले रहा हूँ, ये सल्फर का एटम बॉन्ड्स बना रहा है सबके साथ में, फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दिस इज़ द थर्ड डबल बॉन्ड। अब फोर्थ ऑक्सीजन बचा है, तो ये फोर्थ ऑक्सीजन इधर से आएगा, सल्फर पे -2 चार्ज होगा, और ये जो ज्योमेट्री बनेगा, दिस इज ज्योमेट्री इज नथिंग बट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तुम्हारे ऊपर रहा, सी इफ यूर इन द एग्जामिनेशन ये सब तुम नहीं कर सकते, हाँ, बट वेन यू हैव टू डिस्कस और डिस्क्राइब और बताना है, किसी को एक्सप्लेन करना है, तो ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा। बट इफ़ यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल, लाइक जेई नीट का एग्जाम चल रहा है तुम्हारा और ज्योमेट्री पूछा है, तो तुमको टेबल याद ही होना चाहिए, समझ रहे हो। तो उसका टेबल इफ़ पॉसिबल आई विल सेंड इट इन द ग्रुप और यू कैन मेक इट बाय योर ओन सेल्फ। हाँ, चलो, तुमको याद है हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर, अगर sp का हाइब्रिडाइजेशन होगा, 0 लोन पेयर के लिए कौन सा ज्योमेट्री आएगा, लीनियर। 1 लोन पेयर के लिए लीनियर। sp2 के लिए अगर 0 लोन पेयर है तो ज्योमेट्री कौन सा आएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, राइट ना। 1 लोन पेयर के लिए ज्योमेट्री कौन सा आएगा, लीनियर। sp3 के लिए ज्योमेट्री कौन सा आएगा, लोन पेयर 0 अगर होगा तो टेट्राहेड्रल, 1 लोन पेयर होगा तो ज्योमेट्री कौन सा आएगा अक्षरा, ट्रायगोनल, वेरी गुड। 2 लोन पेयर होंगे तो एंगुलर, एंगुलर, 3 लोन पेयर होंगे तो लीनियर, लीनियर। व्हेन इट कम्स टू sp3d, 0 लोन पेयर के लिए ज्योमेट्री कौन सा आएगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, वेरी गुड, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। 1 लोन पेयर के लिए ज्योमेट्री कौन सा आएगा, सीसॉ ज्योमेट्री, सीसॉ ज्योमेट्री। 2 लोन पेयर्स के लिए टी शेप्ड, टी शेप्ड, और 3 लोन पेयर्स के लिए लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री। व्हेन इट कम्स टू sp3d2 का हाइब्रिडेशन, यहाँ पे तो सब लिखा हुआ ही है। 0 लोन पेयर के लिए ऑक्टाहेड्रल, 1 लोन पेयर के लिए क्या आएगा अक्षरा, स्क्वायर पिरामिडल, 2 लोन पेयर के लिए स्क्वायर प्लेनर, बस यहीं पे रुकेंगे। एंड द लास्ट वन इज sp3d3, जहाँ पे पेंटागोनल बाइपिरामिडल का ज्योमेट्री आता है। अंडरस्टैंडिंग। सो इफ यू वांट यू कैन मेक इट अ टेबल, अगर तुमको ऐसे ही याद रह रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या होता है, वी हैव सीन अबाउट द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी हैव सीन अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, हाउ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डू फॉर्म, किसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है। अच्छा ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, कैरेक्टर्स, ठीक है, परसेंटेज कैरेक्टर या परसेंटेज एस कैरेक्टर। सबसे पहले इन नंबर 1 sp हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन,